This is the question from NCERT. Convert these in scientific notation. Solve it fast. Answer for one. First part answer will be, scientific notation says that the base number must be between 1.0 to 9.9. So here the first non-zero digit is 4. It means I want my answer like 4.8. So decimal has to travel right side 1, 2, 3 places. So 3 places right side and 4.8 tens power. 3 places right side 10 exponent 3 but minus. Reason for minus is whenever it travels right side, so we have to write tens power minus exponent will come. Okay, those many places you will put as a power of 10 but in negative. Okay, next part 2, 3, 4, 0, 0, 0. In such questions where there is no decimal but the number is ending up in zeros, here you should try to avoid zeros, but here right now decimal is at last. You are making the decimal travel 1, 2, 3, 4, 5 places toward left side. Avoid zeros in writing scientific notation and the answer will be plus 5. Yes beta, correct. 2.34 into 10's power 5. Very good all of you. Next one 8008. It is exact number, decimal is not shown, so decimal we will consider at last. Here it will be, so it will travel 3 times, 3 places. 8.008 into 10's power positive 3. Yes, correct. 500.0. So here you can make it travel 2 places left side, and yes beta, you can write this answer of course like this as well. Okay, 2 places, or you may write it like this also, 5.0 10's power 2. I am not asking you to put all the zeros. आप zeros सभी put कर लें या फिर आप zeros ignore कर दें, ठीक है, that's your wish. Yes, आंसर सेम आना चाहिए बेटा. साइंटिफिक नोटेशन में वैसे हम कोशिश करते हैं एक डेसिमल प्लेस, लेकिन हाँ जितने भी डेसिमल प्लेस है लगा सकते हो. Who will tell me this one? Our scientific notation way is x into 10 raised to the power plus minus n. This n is, so many times I told you, any integer. If it will be any integer, so at the time integer means it can go from minus to plus and crossing the 0. It may be 0 as well. जब आपको लगे कि डेसिमल प्लेस कहीं इधर उधर हो ही नहीं रहा, आपको कहीं ना नेगेटिव में जाना है ना पॉजिटिव में जाना है और आपको एज इट इज़ आंसर लिखना है, तो आप इसके साथ लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय 10's power 0. And anything raised to the power 0 is nothing but 1. So it is 1. So answer will remain same. Okay. So this will be the answer. Okay. This is the next question. Count the number of significant figures in the given questions. There are 4 to 5 parts. So please solve it and let me know the answers. Jaldi se. Yes, beta. First non-zero digit is 2. So all the zeros preceding the first non-zero digit is insignificant. So 2 and 5, 2 significant figures are there. And remember one thing, the rule was the zeros preceding the first non-zero digit are non-significant. They just tell the position of decimal. That's it. Second, 208, 0 between non-zero digit, significant. All non-zero digits, significant. So it will be 3. 5005, same rule as above. How many? 4. Correct. Very good. Next, 500.0. 500.0. It will also have 4. Correct. Next one, 2.0034. How many? 2.0034. Yes. 5 significant figures. In this, what we need to do? There is no decimal and the number is ending up to
zeros. What we need to do first? We have to convert it into scientific notation. 1.26 10 power 5. Now the number of significant figures 3. लिखिए बेटा. I told you yesterday it may have 3 to 6 any significant figures. अगर आप तीनों zeros avoid कर रहे हैं तो तीनों zeros include कर रहे हैं तो 6 and intermediate also. So 3, 4, 5, 6 any number of significant figures that depends upon our presentation. But हमारी presentation का ये तरीका सबसे अच्छा होता है, ये तरीका सबसे बेहतर होता है जिसमें zeros नहीं लिखते हम. ठीक है, तो इसमें आपको मिलेंगी 3 सिग्निफिकेंट फिगर. अगर कोई स्टूडेंट इसको इस तरह से मार्क करेगा एंड तब लिखेगा 10 पावर 5, ही मे राइट 6 ऑल्सो. लेकिन आपके आंसर पे प्रोविज़न होना चाहिए सही वाला. हाउ यू आर रिप्रेजेंटिंग योर आंसर? आई हैव रिटन इट राइट. इस समय मुझे 3 सिग्निफिकेंट फिगर नज़र आ रही हैं और ये आंसर यही आंसर है. अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करते हो तो यही मिलेगा. कोई भी ऐसा नंबर जिनमें लास्ट में जीरोस आ रहा हो और उसमें डेसिमल ना हो तो आपको उसको साइंटिफिक में कन्वर्ट करना है, तभी आप उसका आंसर देंगे. एंड ट्राई टू अवॉइड जीरोस. ये ज़्यादा सही मेथड है, यही तरीका सही है. ज़ीरोज़ अवॉइड कर दो उसके लास्ट वाले. जब कोई ऐसा नंबर जिसमें डेसिमल नज़र ही नहीं आया आपको और उसको आप सिग्निफिकेंट फिगर्स में मतलब कोई पूछ रहा है आपसे, तो आपको ट्राई करना है कि आप उनको जब साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो आप उसके ज़ीरोज़ को अवॉइड कर दें. This will be the best method, and as per that the number of significant figures will be 3. Okay, so these are the questions from your NCERT exercise. Okay, now in this write down calculation using significant figures concept. ठीक है बेटा, हमारे पास आगे न्यूमेरिकल्स आएंगे. न्यूमेरिकल्स में हमारे पास बहुत सारे डेटाज होंगे, है ना. आप कोई फॉर्मूला पर्टिकुलर पुट कर रहे हैं, कोई भी पर्टिकुलर फॉर्मूला, दैट कैन बी एनीथिंग, लाइक यू आर यूजिंग पाई आर स्क्वायर. सो पाई की वैल्यू आपने 3.14 लिख दी. ठीक है, एंड आपने साथ में आर जो है आपको दे रखा है 3.1256 लाइक दिस इन 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स. आप उनको मल्टीप्लाई कर रहे हो, राइट. ऐसा कोई भी फॉर्मूला जिसमें आप 2 या 3 चीज़ों को मल्टीप्लाई कर रहे हो और किसी में 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, किसी में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, किसी में 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, अलग अलग नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वैल्यूज़ में. तो आप अल्टीमेटली जो आंसर लिखते हैं, हो सकता है मल्टीप्लाई करने के बाद आपको टोटल 6 डिजिट नंबर मिल गया हो, लेकिन आपको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है. आपने पहले जो कैलकुलेशन पार्ट स्टडी किया है वो सिर्फ इतना था कि अगर आपके पास साइंटिफिक नोटेशन में कोई डेटा है तो आप उसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं, कैसे ऐड करते हैं, सो एंड सो. ठीक है, वो अलग पार्ट था. अब आप उसका जो एक मैग्नीट्यूड था ना, आगे वाला वैल्यू, जो ये वैल्यू होती है 4.8, 2.34, ये अगर आपको मैं बोलूँ इन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है आपको, 4.8, 2.34 एंड 8.008. ठीक है, पहले हमने किया था कि इनको कैसे सॉल्व करते हैं. ठीक है, ऑल ऑफ यू लाइक आपको ये 3 वैल्यूज़ दे दी हैं. इनमें 4.8 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, यहाँ पर 2.34 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, एंड आई से इन तीनों को मल्टीप्लाई करो. अब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे, आपको ये रूल तो पता है कि 10 की पावर ऐड अप हो जाएगी सारी, है ना. ये रूल तो हम कर चुके हैं, वो हमने साइंटिफिक नोटेशन वाली कैलकुलेशन में किया था. लेकिन जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं और इसका एक स्पेसिफिक आंसर आएगा, 6-7 डिजिट्स का बड़ा आंसर आएगा, तो उसमें आप क्या करोगे, आप उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे. जो आंसर आया एज इट इज़ रिप्रेजेंट कर दोगे या फिर कोई पर्टिकुलर रूल लगाओगे. सो दैट्स व्हाट वी आर डूइंग इन द टॉपिक विच इज़ नोन एज कैलकुलेशन यूजिंग सिग्निफिकेंट कंसेप्ट. और ये जर्नली होता है बेटा. ठीक है, आप किसी भी कैलकुलेशन पार्ट में जब भी आप कोई फॉर्मूला पुट कर रहे हैं और उसमें कोई डेटा पुट कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना होता है कि कितने डेसिमल प्लेसेस तक आप उसको सॉल्व कर रहे हैं या आंसर कितना रिप्रेजेंट करना है आपको. ठीक है, सो लेट्स कम फर्स्ट फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. राइट डाउन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. आई एम गोइंग टू गिव ओनली वन मैथड, दैट इज़ फॉर एडिशन. सब्ट्रैक्शन के लिए सेम रूल फॉलो होगा. तो एडिशन के लिए हम कोई भी वैल्यू ले लेते हैं. लेट अस सपोज 4.8 आप ऐड कर रहे हैं. अभी हमने वैल्यूज़ ली ना 2.34 एंड एक वैल्यू हमने ली है 8.008. दीज 3 वैल्यूज आई हैव टेकन. ओके, 4.8, 2.34, 8.008 एंड नाउ यू आर एडिंग इट अप.
नाउ दिस इज द आंसर विद अस 15.148. सो माई क्वेश्चन इज कि इसको इतना ही रिप्रेजेंट करना है या हमारे पास कोई वे है? हम क्या देखते हैं बेटा, जब भी हम किसी भी डेटा को इस तरह से सॉर्ट करते हैं, हम उसको एडिशन या सब्ट्रैक्शन में लेते हैं. सो वी हैव वन रूल एंड दैट रूल सेज, वो रूल कहता है कि आपको जो डेटा मिला है प्लस या माइनस करने के लिए, उसमें जो मिनिमम डेसिमल प्लेसेस वाली वैल्यू है, यहाँ पर 4.8 में 1 डेसिमल प्लेस है 8, यहाँ पर 2 डेसिमल प्लेसेस हैं और यहाँ पर 3 डेसिमल प्लेसेस हैं. सो जो डेटा में सबसे कम डेसिमल प्लेसेस वाली वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग आप रिजल्ट शो करेंगे. ठीक है, इट मीन्स फर्स्ट 1 डेसिमल प्लेस आई गॉट हेयर 4.8. इसका मतलब माई आंसर शुड ऑल्सो बी रिपोर्टेड इन, यहाँ पर लिख दो, एज लीस्ट डेसिमल प्लेस. ठीक है, इज विद 4.8. ठीक है, दैट इज 1 डेसिमल प्लेस, है ना, 1 डेसिमल पॉइंट या डेसिमल प्लेस. ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस आंसर को जो हमारे पास है 15.148, उसको एक ही डेसिमल प्लेस तक रिपोर्ट करेंगे, दैट इज अप टू हेयर 1 तक. ठीक है, लेकिन इसको 1 तक रिपोर्ट करने के लिए मुझे जो बाकी के डिजिट्स बचे हैं उनको क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू राउंड ऑफ. तो यहाँ पर हम एक और टॉपिक में एंटर करते हैं, राउंडिंग ऑफ. राउंडिंग ऑफ. सो अभी तो मुझे इसका आंसर आप सब बताओ कि 4.8 को राउंड ऑफ करेंगे तो क्या आंसर बचेगा हमारे पास. सो हियर आई हैव टू राउंड ऑफ दिस कंप्लीट नंबर अप टू 3 डिजिट्स, दैट इज अप टू 1 डेसिमल प्लेस. तो वो यहीं तक बनता है, ये जो मैंने बॉक्स ड्रॉ किया है. 48 को रिमूव करना है, मतलब आई हैव टू राउंड ऑफ दिस कंप्लीट नंबर अप टू 1 डेसिमल प्लेस. तो मुझे 48 को इग्नोर करना है. जब भी आप नंबर जो इग्नोर कर रहे हैं, वो अगर एक नंबर इग्नोर कर रहे हैं तो 5 से कंपेयर करो, 2 नंबर इग्नोर कर रहे हैं तो 50 से कंपेयर करो, 3 नंबर इग्नोर कर रहे हैं तो 500 से कंपेयर करो. यू कैन डू लाइक दिस. तो यहाँ पर आप 48 को इग्नोर करोगे तो यहाँ पर 50 से कम है, तो विदाउट एनी चेंज यू कैन मेक 15.1. दिस आंसर कैन बी डन. ठीक है बेटा, इस तरह से हमें बनाना है. राइट डाउन द रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ द डिजिट्स. लिखिए, if the digit to be round up is greater than 5, if the digit to be round up is greater than 5, if the digit to be round up is greater than 5, then remove the digit को रिमूव करो by adding 1 to the preceding digit. ठीक है, रिमूव द डिजिट बाय एडिंग 1 टू द प्रीसीडिंग डिजिट. प्रीसीडिंग मतलब पहले आने वाले नंबर को. ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास है कोई नंबर है 1.348 लाइक दिस, ये नंबर है मेरे पास, और मुझे इनको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में कन्वर्ट करना है. 3 सिग्निफिकेंट फिगर में मैं यहाँ लिख रही हूँ, अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर मुझे इसको कन्वर्ट करना है इस तरह से. तो आप क्या करेंगे, आपको जो इग्नोर करना है नंबर वो है 8, इसको आपको रिमूव करना है. 8 को कंपेयर करो 5 से, एक डिजिट है ना ये, इसको आपको इग्नोर करना है, तो आप उसको कंपेयर करोगे 5 से. 8 इज ग्रेटर देन 5. इसको इग्नोर करते वक्त जैसे प्रीसीडिंग डिजिट जो है उसमें +1 करना पड़ेगा. इसका मतलब इसका राउंडिंग ऑफ देगा आपको 1.35. ये राउंडिंग ऑफ का फर्स्ट रूल है. इट इज़ द फर्स्ट रूल फॉर राउंडिंग ऑफ एनी डिजिट. ठीक है, 5 से कंपेयर कर लिया आपने. दूसरा रूल लिखिए. दूसरे रूल में लिखिए, इफ़ द डिजिट टू बी इग्नोर इज स्मॉलर देन 5. इफ़ द डिजिट टू बी इग्नोर्ड इज स्मॉलर देन 5. ठीक है, स्मॉलर देन 5. यहाँ वो डिजिट है ना बेटा, यहाँ हम डिजिट की बात कर रहे हैं. कोई भी डिजिट है x, ठीक है, वो ग्रेटर है 5 से या वो स्मॉलर है 5 से. अभी हम स्मॉलर देन 5 लिख रहे हैं. जो डिजिट आप इग्नोर करने वाले हो, अगर वो 5 से छोटा है तो आप क्या करेंगे,
चेंज, रिमूव द डिजिट, लिखिए रिमूव द डिजिट विदाउट मेकिंग any change to rest of the number, to rest of the number, लिखिए rest of the number, इसको कंप्लीट कर लेना, आई एम स्पीकिंग आउट, ठीक है. मेकिंग, विदाउट मेकिंग एनी चेंज टू रेस्ट ऑफ द नंबर, लिखिए इसको. सेकेंड रूल, एग्जाम्पल, here we can do example 2.241. I have to round off this up to 3 significant figures. 3 significant figures. So these are 3 significant figures. 2.24. It means I don't want this one. This one I have to remove. This one I will compare with 5. It is smaller than 5. 1 is smaller than 5. I will remove this one without making any change to 4. So answer will be 2.24. So this was second rule, ठीक है, to round off. Third rule you see, third rule is 2.235. एक पार्ट ये है, एक है 2.285. दो रूल्स, इसमें 2 रूल्स लगेंगे. अब क्या है, अब आपको अभी भी नंबर को 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है. 3 सिग्निफिकेंट फिगर मीन्स 2.23, 2.28, यहीं तक मुझे वैल्यू चाहिए. लेकिन जो नंबर मैं इग्नोर करना चाह रही हूँ वो 5 ही है. हम जिस नंबर को इग्नोर करते हैं उसे 5 से कंपेयर करते हैं, बट व्हाट इफ़ दैट नंबर इज़ इटसेल्फ 5. 5 ही है वो नंबर. तो जो नंबर अगर 5 ही मिलता है तो आपको क्या करना है, उसे प्रीसीडिंग डिजिट को देखना है. अगर वो ऑड है तो उसे इवन बनाने के लिए +1 ऐड करेंगे. अगर वो ऑलरेडी इवन है तो उसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे. आई होप यू गॉट इट. ठीक है, यहाँ पर लिखिए, इफ़ द नंबर टू बी इग्नोर्ड इज़ 5 itself. If the number is to be ignored, number to be ignored or to be removed लिख देना, is itself 5, itself 5, ठीक है, itself 5, then look at preceding digit. Preceding means coming before it, preceding digit. ठीक है, रूल ए, रूल बी. इफ़ लिखो, इफ़ प्रीसीडिंग डिजिट, आई एम मेकिंग PD, शॉर्ट में लिख रही हूँ बेटा, टाइम लग जाएगा. इफ़ PD प्रीसीडिंग डिजिट इज ऑड, ठीक है, ऐड 1. इफ़ प्रीसीडिंग डिजिट इज इवन, डोंट मेक एनी चेंजेस, डोंट मेक एनी चेंजेस. तो अगर आपको ये रूल समझ आ गया तो इन दोनों में आप अप्लाई करो इस रूल को एंड लेट मी नो द आंसर. सो द आंसर्स विच वी आर गेटिंग थ्रू दिस डेटा, हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आंसर चाहिए. तो 5 को इग्नोर करना है. अगर 5 को ही इग्नोर करना है तो पीछे वाला डिजिट ऑड है तो उसे इवन बनाओ ऐड 1 करके. अगर ऑलरेडी इवन है तो डोंट मेक एनी चेंजेस एंड लेट इट बी एज इट इज़. ठीक है, दीज आर द रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ. तो हमने ये टॉपिक है ना, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में आता है. कैसे आता है बीच में, लेट मी शो यू हेयर. जब हम इस क्वेश्चन पे आए थे कि आपने किसी भी डेटा को, 2 या 3 डेटा को प्लस या माइनस किया, सब्ट्रैक्शन किया या एडिशन किया, जो भी आंसर आता है यू ऑलवेज ट्राई टू मेक इट अप टू लीस्ट डेसिमल प्लेसेस ऑफ द डेटा. जिन डेटास को आपने प्लस या माइनस किया है उसमें जो लीस्ट डेसिमल प्लेस है आपका आंसर उसी में आना चाहिए. तो यहाँ पर तीनों में से लीस्ट डेसिमल प्लेस था 1, तो आपको इस पूरे आंसर को 1 तक ही करना था. सो यू टोल्ड मी द आंसर 15.1. राइट बेटा. नेक्स्ट वन देखो, नेक्स्ट वन आप किन्हीं 2 नंबर्स को. सो फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन. ठीक है, इसको समझना है अब हमें कि इसमें डेटा को कैसे हैंडल करते हैं. आपको 3 डेटा दे दिए मल्टीप्लाई में, ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, यू वुड गेट सम आंसर. लेट मी नो द आंसर. सो सी दिस आंसर, इस मल्टीप्लिकेशन का ये आंसर है. यहाँ पर जो रूल है वो क्या है,
जब भी आप डेटा को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो वहाँ पर जो भी आंसर आएगा उसको आप लीस्ट नंबर, आपको लिखो आंसर मस्ट बी रिप्रेजेंटेड in lowest significant figures of data given। जो डेटा आपने मल्टीप्लाई या डिवाइड किया हो उनमें से जिस वैल्यू की सबसे मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हो, आंसर उसी में रिप्रेजेंट होगा। 1.35, 1.02, 0.025 लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स here are here 3, here 3 and here 2. So 2 significant figures are here. It means my answer must have 2 significant figures. 2 significant figures. So here I have to get it into 2 significant figures, means up to here. यहाँ तक मुझे चाहिए 3, 4 तक। जो नंबर मुझे इग्नोर करना है वो है 3 डिजिट। याद रखना, जब भी 3 डिजिट नंबर इग्नोर करना हो तो उसको आप 500 से कंपेयर करो। समझ आया? अगर 1 डिजिट कंपेयर करना है तो 5 से कंपेयर करो, अगर 2 डिजिट एक साथ रिमूव करने हैं तो 50 से कंपेयर करो, और अगर 3 डिजिट एक साथ इग्नोर करने हैं तो उसको 500 से कंपेयर करो। 425 इज लेसर देन 500, इज लेसर देन 500, सेम रूल विल बी अप्लाइड, नो चेंज इन द नंबर, 0.34, दिस विल बी द आंसर। यस, और अगर ये क्वेश्चन होता, चलो एक बार फिर देख लो, अगर ये ऐसे होता 825, अगर सपोज ये आंसर ऐसे होता तो हम क्या करते, जो 3 डिजिट हमें इग्नोर करने हैं वो 500 से ज़्यादा है तो इसमें +1 करना पड़ता। ठीक है, +1 इन दिस, ये सेम रूल है बेटा। ठीक है, और अगर ये 500 होता तो पीछे वाले डिजिट को देखते हैं ये इवन है या ऑड है। इवन है तो एज इट इज़, ऑड है तो +1। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। ठीक है, डिवीजन में भी सेम रूल, और वहाँ मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शन और एडिशन दोनों में सेम रूल कि मिनिमम डेसिमल और यहाँ मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है बेटा, दिस इज़ द रूल, डन। सो आज का क्लास यहीं पे ओवर हो रहा है।